Assalamualaikum, this is me Kinza Umar. I start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Respected teachers and dear students, I welcome you all to Javed Publishers. Today we'll discuss Kids Science Grade 4 Chapter number 1 and the topic is Characteristics and Life Processes of Living Organisms. Today we'll discuss the chapter number 1 Characteristics and Life Processes of Living Organisms. The very first thing that comes around in our mind is actually what are the characteristics of living organisms. Living organisms can breathe, वो सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो characteristics में हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद बात आती है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ये इनकी क्या कोई ग्रुपिंग की गई है. इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. द वेरी वन इज़ प्लांट्स एंड द सेकेंड वन इज़ एनिमेलिया. So there are some similarities and some differences between these two groups. Similarities क्या हैं कि एनिमल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है. क्या हम पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते. और ऑन द सेम साइड प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन एंड वाटर टू लिव. Then we comes around the classification of animals and classification of plants. Animals are classified into two major types. The first is vertebrates and the second one is invertebrates. Now it will discuss further more on the explanation that what are vertebrates, what are invertebrates, what are their characteristics, what they need, what they don't need, what are the examples. This could be discussed further more on the next video. So then we comes around the classification of plants. Plants are classified into two again main types. The very first is flowering plants and the other one is non-flowering plants. As the name discuss, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो डेफिनेटली फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होंगे, उन पे फ्लावर्स आते होंगे. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन पे फ्लावर्स नहीं आते होंगे, वो फ्लावर्स के बगैर होंगे. सो फिर बात ये आती है कि अगर उसमें फ्लावर नहीं आ रहे, वो ये स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो और होगा ना. अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, वो स्पोर्स बेयरिंग प्लांट्स होते हैं. एंड देन furthermore there are different organisms हैं, उनके different functions हैं, वो different functions perform करते हैं. एक ही जगह पे रहने वाले इतने सारे organisms अपनी अपनी जगह पर अपना अपना function perform कर रहे हैं. So then we comes around the next topic which is biodiversity. As the name indicates, bio means life, means living organisms. And what is the meaning of diversity? Diversity is the meaning as variety. So it means if we have variety of living organism in a specific area, in a specific region, then it comes around a single definition which is biodiversity. So and then comes to the point that maybe there are major ways, different things that could protect the biodiversity. अब होता क्या है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हम ह्यूमंस क्या कर रहे होते हैं, कहीं जगह पे ट्रीज़ कट हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पोल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो रही है और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी इफ़ेक्ट हो रही है. फिर कुछ तो हमें करना है ना जिससे बायोडाइवर्सिटी को हम सेव कर सकें. सो डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं जो इसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं. मतलब कि डिफॉरेस्टेशन को कम से कम किया जाए, हंटिंग लार्ज स्केल पे ना की जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी को हम सेव कर सकें. Okay, then comes towards the next point which is an human organism consists of different organs and these organs are performing their functions at their own. For example, if we count down the different organs which are brain, like teeth, our muscles, bones, stomach, lungs, heart. There are many organs but every organ is performing their own function. हमारी बॉडी में बहुत से organs हैं. एक ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट organs से मिलकर बनी हुई है, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि हर organ अपना अपना काम कर रहा है. और वो क्या करते हैं, सारे डिफरेंट organs जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं. क्या करने के लिए? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए. इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं
कि अगर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एसोसिएशन है, अब वहाँ पे हर ओहदे पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है? स्टेबिलिटी, उस कम्युनिटी की स्टेबिलिटी। हर बंदे का अपना काम है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में हर ऑर्गन का अपना काम है। जैसे ब्रेन है वो सोचने की सलाहियत रखता है, टीथ है वो च्यूइंग करते हैं फूड को, और लंग्स हैं वो ब्रीदिंग का काम करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। उसके बाद हार्ट आता है तो वो पंप कर रहा होता है ब्लड को। हार्ट का काम ब्रेन नहीं कर सकता, ब्रेन का काम हार्ट नहीं कर सकता। फिर आगे फर्दर हम मूव करते हैं स्टमक पे, तो स्टमक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइजेशन में। देन वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मसल्स। तो मसल्स की बात हम करें तो ये क्या करते हैं? रिलैक्सेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इफ़ आई एम मूविंग माय आर्म, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बोन्स पे। तो बोन्स क्या कर रहे हैं कि वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम खड़े हुए हैं तो कैसे खड़े हुए हैं, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट हैज़ फॉलोइंग 5 मेन पार्ट्स: रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब प्लांट्स में भी क्या है कि 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन पांचों के पांचों पार्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे रूट्स हैं वो क्या करते हैं? रूट्स ज़मीन में होती हैं, तो वो जो हम उनको वाटर करते हैं प्लांट को, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और आगे वो फर्दर प्रोसीड कर देती हैं स्टेम्स के पास। स्टेम वहाँ से पानी लेता है, फिर आगे फर्दर प्रोसीड होता है। तो लीव्स हैं, लीव्स वहाँ पे क्या हो रहा है? फूड प्रिपेयर हो रही है, जहाँ से जो मेन पार्ट है जो वो क्या करते हैं? लाइट को सक करते हैं, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, वो आगे फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फर्दर प्रोसीडिंग होती है, फिर फ्लावर्स आ जाते हैं, फिर सीड आ जाते हैं। मतलब हर एक पार्ट अपना अपना काम कर रहा है, और उन सब का मेन मकसद क्या है? उस प्लांट को प्रॉपर इंगेज करना, उस प्लांट की प्रॉपर स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, ये सब कुछ वो डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं ताकि वो एक प्लांट को स्टेबल कर सके, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें, उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। दिस ऑल वी कवर इन द चैप्टर, एंड येस विल डिस्कस one टॉपिक इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. This is all we should study in this chapter. Thank you. So that is all about the chapter number 1. कीप वॉचिंग द वीडियोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।